हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे द टॉकेटिव बार्बर्स। टॉकेटिव मतलब कि बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं वो। ओके। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शहरियार रूलेड ओवर अ लार्जेस्ट किंगडम्स। किंगडम्स मतलब राज्य। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरियर। उसकी जो क्वीन थी, रानी थी, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती थी। इच नाइट ही सी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। एक दिन वो रात को अपने किंग को स्टोरी सुनाती है। सी नरेटेड एशियन पर्शियंस एंड अरेबिक फोक स्टोरी। एशियन मतलब कि प्राचीन जो होती हैं, फोक मतलब कि जो नई नई जो होते हैं उसकी स्टोरी सुनाती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। रीड द स्टोरी अबाउट मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। ये कहानी है जो बहुत बोलता है, चुप नहीं रहता, उसके ऊपर। इन द सिटी ऑफ कैसकार लिविड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर्स सॉरी। यहाँ पे एक सिटी है कैसकार, वहाँ पे एक बार्बर रहता है, उसका नाम है, वो बहुत टॉकेटर है, मतलब टॉकर है, मतलब बहुत ज्यादा बोलता है। वंस द सुल्तान called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of saving him. The sultan got angry. When are you going to stop talking and begin to do your work? बहुत ज़्यादा बोलता है। जब वो शेव कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, तो उसको कहते हैं कि क्या आप बोलना बंद करके अपने काम पे ध्यान दोगे। The barber replied, yes, do me an injury by calling me a chatter. मुझे बहुत हर्ट हुआ कि आपने मुझे चैटर कहा, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ। For everyone say I am a very quiet. सब कहते हैं मैं बहुत चुप हूँ। I have a 6 brother whom you might call chatters. मेरे 6 भाई हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। Their names are Backbone, Bookbone, Buckberia, Backback, Buckbuck, Alcos, and Ulnashi and Shahukabak. One is a humpbacked. एक जो है उसके पीछे बैक पे हम बैकेड है। वन इज अ टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज अ हाफ ब्लाइंड, अंधा है। वन इज अ क्वाइट ब्लाइंड, एक मतलब बहरा है। वन इज अ डेफ एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे आर कॉल्ड ग्रेट टॉकर्स। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेरिंग दिस विथ वर्ड। गठियर से यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, उसमें दिखाया गया है एक अंधा है, एक टूथलेस है एंड एक सुन नहीं सकता। मतलब इस तरीके से ये 6 भाई हैं इसके। सो हाँ, आगे स्टोरी देखते हैं। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। द सुल्तान ट्राइड लूजिंग एट ऑल पेटेंट्स एंड सेंड हिम अवे। आई विल नॉट बी सेवेड टूडे। My master, cried the barber. It was not I who come to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have shaved you. Okay. He then began narrating another story which lasted half an hour. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I to go out at noon, said Sultan. When he saw the Sultan was really angry with him, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है सुल्तान। The barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." मैं आपकी शेव कर रहा हूँ। Saying this, he was at the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the razors. When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter. Go on saving me, speak no more." Ordered the Sultan. सुल्तान ने कहा था कि सेविंग पे ध्यान दो, ज्यादा मत बोलो। Be patent, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matters of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Finish saving at once.
Finish saving at once, the Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exceeded. The Sultan cried, "Be calm, my master, and you shall be saved in a moment," said the barber, and saying this, the continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. "If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful," he said. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. When the barber heard the Sultan mention a feast and exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited four or five friends to come to the house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them." The Sultan, who was at the mercury of the barber, was ready to do anything to be rid of him. "Be quick and finish your work," the Sultan replied, "and you shall have all the food that has been prepared for me today. Please show me the food so that I may judge if it is enough, my five friends. I have enough for food for you." The Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast brought in. The barber looked over the food and said, "This is a very good, but I shall want some fruits for the dessert also." The Sultan is impatient since his head was half shaved. यहाँ पे देख सकते हो उनका सिर जो है हाफ शेवेड किया हुआ है. ऑर्डरेड दैट फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी बॉट इन. लुक एट हियर्स, ये रहा, ये इस तरीके से हाउस शेप किया हुआ है. एंड फूड जो ये रहा यहाँ पे, और ये है बार्बर जो बाल काटते हैं, एंड ये है सुल्तान. द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू examine each dish separately. Took up of half an hours. The Sultan stamped his feet immediately, but barber did not hurry at length. However, he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so gorgeous. Look at yours." ओके, तो ये जो स्टोरी है द टॉकेटिव बार्बर्स, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी स्टोरी समझाई है कि किस तरह से एक काश्तकार में एक बार्बर है, वो मतलब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसका अपने काम पे मतलब ध्यान नहीं रहता. और फिर उसने अपनी स्टोरी एक्सप्लेन की है. उसके 6 भाई थे, तो किसी अंधा है, तो कोई मतलब आँख नहीं है, किसी की दांत नहीं है. तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता है. वो क्वाइट ब्लाइंड है कोई. तो हाँ, फिर आगे वो जो सुल्तान है, सुल्तान उससे कहता है कि गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड. इसे 3 पीस दे दो और इसे बाहर करो, आज मेरी सेव नहीं होगी. क्योंकि वो उसे बोलने के उससे परेशान हो जाता है. "मैं वो नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुमने मुझे ऑर्डर दिया आने के लिए." और बार्बर कहता है सुल्तान से कि तुमने मुझे ऑर्डर दिया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ यहाँ पे, तुमने मुझे बुलाया था शेव करने के लिए, इसीलिए मैं आया हूँ. तो जो आप ऑर्डर दिया इसलिए आया हूँ. मैं आधे घंटे तक चली ये मतलब ये टॉक जो था वो आधे घंटे तक चला. एंड अनदर स्टोरी ही lasted हाफ ऑन हावर्स. आधे घंटे तक मतलब बार्बर ने फिर से अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दी एंड आधे घंटे तक चली. उसके बाद आधे घंटे तक जब तक ये बात चलती रही, ये भाषण देना बंद करो,
सुल्तान ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे दोपहर में बाहर जाना है। उसने देखा सुल्तान बहुत गुस्सा है। यह कहकर उसने देखा कि सुल्तान बहुत गुस्सा है। फिर उसने क्या किया कि सेइंग दिस ही वॉज इट द सुल्तान्स हेड, उसका सिर धोया एंड शेव करना शुरू किया। एक बार में रेजर के साथ छुआ भी नहीं था। मेरी शेविंग करते रहो और ज़्यादा मत बोलो। वो बहुत ज़्यादा बोलता था, हर बात में बीच बीच में अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देता था। ज़्यादा मत बोलो, काश आप मुझे बता दो ये मैटर है वो किस बारे में है, उसमें मैं अपनी एडवाइस दूंगा। बार बार कहता है सुल्तान से कि कुछ जो मैटर है वो आप मुझे बताओ तो मैं उसमें अपनी एडवाइस दूंगा। तो आधी सेव के साथ छोड़ दिया बार्बर ने ये देख के लिए कि टाइम कितना हुआ है। उसने कहा, मैं अपने कुछ दोस्तों को दावत के लिए, फीस्ट मीन्स की दावत के लिए बुलाना चाहता हूँ। दावत के लिए, फीस्ट मतलब दावत के लिए बुलाना चाहता हूँ। वो निकलने की जल्दी में था। दावत का जिक्र करते हुए मैंने 4-5 दोस्तों को बुलाया है कि आज मेरे घर आए। सुल्तान इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो चुका था बार्बर से कि वो कुछ भी करने को तैयार था, उस पर मर्जी मतलब कि दया करने को भी तैयार था। तो उसने कहा कि जो मैंने फूड मेरे लिए प्रिपेयर किया गया है वो मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे फूड दिखाओ। बार्बर कहता है कि मुझे फूड दिखाओ। Look at the food and say this is a very good, but I shall want to some fruits for the dessert also. वो कहता है, फिर वो उसको फ्रूट प्रेजेंट किया जाता है। तो वो फूड देख के, मतलब जो खाना है वो देख के कहता है कि इसमें सम फ्रूट्स एंड डेजर्ट भी ऐड कर दिया जाए। बार्बर छोड़ देता है। Okay, Barber left off shaving. The sultans to examine each dish separately. This look cut off half an hour. आधे घंटे तक वो मतलब खाना देखने को लिए चला जाता है और शेफ जो कर रहा होता है सुल्तान की, वो आधी ही छोड़ देता है। ओके, सुल्तान अपने पैरों को पर जमीन पर मारता है गुस्से में आके। द सुल्तान स्टेप्ड हिज फीट immediately, but the barber did not hurry. At length, however, he began to look at the razor, but after few minutes of work, थोड़ी देर के लिए अपने रेजर रख के वर्क को मतलब स्टॉप कर देता है। Stop suddenly and cried, I never knew that you were a generous. अपना वो सुल्तान से कहता है बार्बर्स कि चिल्ला के कहता है कि आप इतने दानवीर हो, मुझे पता नहीं था। न्यू वर्ड्स में देखते हैं चैटर मीन्स बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं वो, समवन हु टॉक्स अ लॉट, डिफेक्ट, अ फॉल्ट, ओपिनियन, what a person feel about a person, things or a subject, excited, tried and feed up, dessert, a sweet dish served after the main meal, examine, to look at some things very carefully, at length, at a stretch. Okay, write a true and false. The barber was saving the sultan's beard. False. The sultan gave him their gold coins. True. हाँ, सुल्तान बार्बर को गोल्ड कॉइन देता है। The barber refused to leave the sultan's palace. True. There were 7 brothers altogether in the sultan's family. False. 6 brothers हैं। Let's listen. A lion emerged from his lair for a short summer cut to his hair, but the barber he wept while his customers slept as they waited for their turn in the chair. Joseph G. Francis, look at here, किस तरीके से शेर के मतलब बाल काट रहा है बार्बर, वो दिखा है। Let's read. How many brothers did the barber have? So 6. Why was the sultan in hurry? He had to attend the feast of friends. वो अपने फ्रेंड्स के साथ दावत खाना चाहता था, दावत में जाना चाहता था, सॉरी, इसीलिए उसने सुल्तान ने जल्दी की थी। Why did the barber take so long shave the sultan? बिकॉज बिजी टॉकिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था और बहुत ज़्यादा टॉक कर रहा था। सो ये थे 3 क्वेश्चन आंसर।